So let's begin today's class. What we are going to learn today? Before that, I am going to ask IQ, iQuest. What are the iQuest? The introductory questions. So first I am going to ask you question, why we go to the bank? Please tell me the answer. Why we go to the bank? To deposit money. Because we deposit money. Very good. Bank account. To open bank account. Very nice. So in simple terms I can say to deposit money. Yes or no? To deposit money. Yes or no? Or I can say for money transactions, because when the things starts with bank, then what pictures comes in mind? About money. Because what is bank? Bank is the organization which deals in money. Bank is the organization which do the business of money. Okay, very nice. My next question to you, question number 2. You have to write these all questions in the registers. Okay. Why we wanted to deposit money into bank? Money into bank. Tell me this answer. For security. For security. Number 1, for security. What is the second one? For earning interest. For earning interest. Very nice. Or to use the best. To use the best of मनी. मतलब हम अपने पैसे का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसे प्रोडक्टिव बना सकें, इसलिए हम बैंक में पैसा रखते हैं. यस, इसमें सिक्योरिटी पॉइंट भी आ जाता है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन्स भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. नाउ द थिंग इज़ दिस, हु मेंटेन मनी इनटू बैंक. लास्ट क्वेश्चन है, हु मेंटेन मनी इनटू द बैंक? हमारी तरफ से या फिर बैंक की तरफ से? You just give me the answer of this question simply. What is the answer, guys? Keep it up. Accountant. I can say the banker. Yes or no? The banker is the person who maintain money into bank. Means when you go to the bank, what you see, there are different counters and the people are there for different jobs. Somebody is receiving cash, somebody is giving cash, somebody is receiving checks, somebody is entering the entries in your books, whatever it is. And somebody is listening your queries, somebody is helping you, somebody is passing the loan. There is different kinds of section. Okay, so in simple term, the person in the bank who works for bank is called banker. Is called banker. So banker manages the money. So whatever money is deposited by you is maintained and managed by the banker. Are you giving some salary to the banker to manage this money? Not at all. So this service is absolutely free for you. Means once you are going to the bank, then bank starts working for you. What's amazing? But the most important thing, can you rely your money on banker? You have some trust that I have deposited some money, but can you rely that banker will do always work for you? Banker will work only for you in the banking hours. Okay, so why I am asking these all questions to you? Because today we are going to learn very most important chapter. What is that?
Before that, tell me one thing. Apart from banker, is anyone who is maintaining your money? Who is that person? Please name. The accountant. Very good. The accountant. अब ये accountant कौन है? It may be business owner or maybe you or maybe your employee. Is this clear? So there are two persons, number one and number two. Those are working for your money. Means to maintain your money, there are two persons. Number one is banker, number two is accountant. Are you getting my point? Any confusion in this? So when there are two different persons working for a same thing, what do you think? There may be any differences? Because they are two persons and they are two minds. They have different transactions. They have a different time of working. So can you feel that there may be any differences among those working? So what kind of differences may be? There may be any kind of differences. So to find out why this kind of differences is happening, we study very important thing. What is that? Bank reconciliation statement, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BRS. This is we are going to learn today. मज़ा आया? क्या मज़ा आया? Why we are going to learn BRS? इसमें सबसे पहले ये लिखो. Number one, to find out differences, to tally the balances, to maintain cash book as per passbook. ये 3 पॉइंट लिख लो. कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ तो कोई डाउट है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं. क्यों पढ़ने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट? क्योंकि आपका जो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, आप काम कर रहे हो, यानी बैंकर काम कर रहा है और आपके साथ कोई अकाउंटेंट भी जुड़ा हुआ है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है. तो सम टाइम यू आर डिपॉजिटिंग योर चेक इन टू द बैंक, ओके, बट यू सी इन द कैश बुक you have written that check, but that check is not credited into your bank account. So means that money is not credited, money is not increased in your bank account. So there may be the difference by that check amount. Yes or no? So how you will came to know this? To understand this, that is this entered into the bank account or not? Whatever work your accountant is doing has to ensure that is that entered in the passbook or not. That is why every businessman needs bank statement. Every account holder needs passbook to maintain it, to update it, so that you could tally what are the transactions you have done with the bank. कुछ समझ में आया? कितनी बात समझ में आई? तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और उसके पर्पस क्या है? पहले तो हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए
दूसरा हमें उनके बैलेंसेस कैसे टैली होते हैं वो पता होना चाहिए। तीसरा हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हमारी जो कैश बुक है उसको हम पासबुक के अकॉर्डिंग मेंटेन करें। क्लियर? शुड आई रब दिस नाउ? यहाँ पे एक कपड़ा रखा था, सो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। क्लियर? अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है जो इन्होंने मिस करी है आज। क्या करूँ इनका? हैं? मामा के मामा मैंने मिस कर दिया। हाँ, आज रक्षाबंधन भी तो है। आज लेकिन ये क्या है, मतलब रक्षाबंधन तो यार सुबह बन जाता है, अभी सब पूरे दिन में। बट ये कि आप जाते हो कहीं तो फिर टाइम लगता है ना। मम्मी कल चली गई थी, मैं रह गया। BRS यार, काम तो मम्मी का ही है ना, तुम्हारा क्या है? वो माता मैं गया। अब देखो जैसे कि नाम लिखा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिकन्सिलेशन? रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? करेक्शन। हाँ, करेक्शन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है टू टैली दी ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? मिलान करना, यानी किसी बैलेंस को, किसी ट्रांजैक्शन को किसी दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ मिलाना, टैली करना। जैसे मैंने कैश बुक में लिखा तो क्या वो पासबुक में लिखा है कि नहीं लिखा? इसको हम रिकन्सिलेशन बोलते हैं। तो जब हम रिकन्सिलेशन करते हैं ना तो हमारे सामने क्या आता है, कुछ सिचुएशन निकल के आती है, कुछ डिफरेंसेस निकल के आते हैं। वो डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। समझ में आया? तो इससे पहले मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बनाता हूँ, और उस फॉर्मेट को आप पहले तो इसका मीनिंग लिख लो। BRS स्टेटमेंट क्या होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, व्हाट इज़ BRS, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप क्या लिखोगे? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन, ये एस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट is prepared by the businessman on a particular date, on a particular date to ascertain the cash book with the पासबुक। ठीक है, विद दी पासबुक। समझ में आया या नहीं आया? ये आपको करना है। क्लियर है? मीनिंग समझ में आया? एसर्टेन का मतलब है डिटरमाइन। एसर्टेन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करना, निश्चित करना, किस चीज़ को चेक करना, फिक्स करना, सर्टेन करना, एसर्टेन करना, फाइंड आउट करना, चेक करना। इट्स न्यूमरस वर्ड यूज फॉर दिस। क्लियर है ये बात? नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ BRS। इसका बनाने का तरीका, क्या तरीका है इसका? बहुत ही सिंपल तरीका है।
आपकी स्टेटमेंट का एक ही फॉर्मेट होता है, और ये स्टेटमेंट हमेशा यूज करना, जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है? स्टेटमेंट जब फॉर्म होती है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन, यहाँ पर डेट आ जाएगी, और ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है। क्लियर? दिस इज पर्टिकुलर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 कॉलम बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्लस कॉलम, दिस इज कॉल्ड माइनस कॉलम। क्लियर? एस नंबर के लिए भी होता है। एस क्या? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बनाना चाहो बना सकते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ये जो है ना, क्या दे रखे होते हैं? नंबर दे रखे होते हैं, नंबर वाइज करके। ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इट्स एज पर यू, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको कोई ना कोई बैलेंस दिया होगा। क्या दिया होगा? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टार्टिंग। यहाँ लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। जो भी आपको बैलेंस दे रखा होगा वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, एडिशंस एज पर दी कॉन्सेप्ट्स। एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ कुछ ऐसे एडिशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको करने हो, जैसे चेक इशूड बट नॉट presented, directly deposited by bank। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, यहाँ तक मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कहीं कुछ चीज़ बोर लग रही हो, कहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो तो बता देना। तो आपने क्या करना है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस मैं आपको लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने लिख दिया check received and deposited same day। ये सारी ट्रांजैक्शंस हो गए आपके, ठीक है ना। तो ये एडिशंस नाम है ना, तो एडिशंस का मतलब है प्लस होंगी। तो हमारे बुक में डाल दिया, क्या दे रखा है? मतलब ऐसा लिख रहा है, एडिशन एज पर कॉन्सेप्ट। क्या लिख रहा है? ऐसा लिख नहीं रहा जैसे इस पे है। अरे वो छोड़ो, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये कोई वो नहीं है। मतलब ये नंबर सीरियल वाइज लेके आप सीरियल वाइज लेके चलना, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एडिशंस कौन कौन सी होती हैं। फिर आता तुम्हारा तीसरा, बुक अभी रहने दो बेटा, बुक की जब पढ़ेगी जब बता दूंगा। अब कुछ सब्सट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे, या फिर मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, एग्जेम्पशन टू बी माइनस, ठीक है। कौन कौन से एग्जेम्पशंस होते हैं? आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, बट नॉट क्रेडिटेड। नंबर 2, बैंक चार्जेस चार्ज्ड, चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस। क्लियर? तो जब आप इसका यहाँ पे टोटल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा उसमें से माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक
ठीक है, क्लियर है। तो जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ का और यहाँ का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा, इट इज़ इक्वल टोटल, ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ये जो आएगा यहाँ पर हमेशा इसका अपोजिट आंसर आएगा। यहाँ क्या लिखा था, तो यहाँ क्या आएगा, नेट बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि ये पासबुक आ गया तो पासबुक का क्या बैलेंस होता है, पासबुक का बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपका आंसर माइनस साइड में आएगा। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया, इसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर बताऊंगा। इसको लिख लो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, ये चादर ओढ़े है खड़ा कोई सुनाएगा ना। अरे